Hello children, today we are going to do question and answer of chapter 2, Olive Ridley's Sea Turtle. First question is, how did the turtle walk start? Turtle walk कैसे शुरू हुआ था? A conservationist had found a dead Olive Ridley sea turtle washed ashore on a beach in Chennai many years ago, and she has decided to do something about it. She and her friend decided to educate the fisher folk and people living along the coastal about sea turtles and the need to protect them. This was how the turtle walk started. टर्टल वॉक कैसे शुरू हुआ था? एक लड़की कंजर्वेशनलिस्ट थी एंड उसके जो कुछ दोस्त लोग थे जो सी शोर पे वॉक कर रहे थे चेन्नई के बीच पे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ऑलिव रिडली सी टर्टल जो है वो वहाँ पे शोर पे है और वो मरा पड़ा है। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो फिशरमैन्स हैं उन लोगों को सबको एजुकेट करना और उन सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना। दिस वे सी टर्टल वॉक स्टार्ट हुआ। What was the volunteers asked to do? वॉलंटियर्स को क्या कहा गया करने के लिए? Volunteers were given two tasks: to look for turtle eggs and to release newly hatched turtle into the sea. पहले बात तो टर्टल एग्स को देखना और उन लोगों को जो नया टर्टल अंडों से बाहर निकलता उन लोगों को सी में अंदर डालना। The volunteers were asked to look out for marks like tractor tires leading from the sea towards the shore. और दूसरा काम क्या दिया गया कि जो ट्रैक्टर मार्क्स हैं जो सी की तरफ से शोर की तरफ आ रहे हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करना और देखना। How did Nofia find a sea turtle nest? Nofia को turtle nest कहाँ से मिला? Nofia found the nest in the nest of the turtle by following its track along the sand. वो रास्ते में सी के किनारे किनारे वो जो ट्रैक था उसको के पीछे पीछे चलते चलते उसको मिला। The track is created by the flippers of the female turtle as she drags herself across the sand. और कैसे मिला? जब वो टर्टल की जो फ्लिपर्स हैं उसके कारण जो मार्क आ गया था उसको ढूंढते ढूंढते फिर वो नेस्ट तक पहुंच गए। What did the volunteers do with the egg? वो एग से वॉलंटियर्स ने क्या किया? A volunteer spread some sand in the basket and transferred the egg to it. कुछ रेत को बास्केट में फैलाया और उसके ऊपर उन एग को ट्रांसफर किया। He covered it with more sand from the nest. और जो वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने लेके आया था लेग्स वहाँ से कुछ और सैंड लेकर बास्केट में डाला। दूसरे वॉलंटियर क्या किया? Another volunteer wrote down the date, time, number of eggs and temperature of the sand on a piece of paper and put it in the basket. दूसरा ने क्या किया? उस किस दिन मिला, टाइम, कितने सारे एग हैं, वो एक पेपर पे लिखा और उस बास्केट में डाल दिया। और दूसरे दो ने क्या किया? अदर टू देन टुक द बास्केट टू द हैचरी और दो लोग उसको हैचरी में लेकर गए। What did Nofia do when she went back to the hatchery? After returning to the hatchery, Nofia dug 3 separate holes in the sand and buried the turtle eggs in these nests. क्या किया? वहां जाके 3 गड्ढा खोजा और उसमें जो एग्स लेकर आए थे उसको उसके अंदर डाला। Sand from the original nest was also used for this. In other part of the hatchery, she saw hundreds of newborn olive ridley sea turtles, hatched from the eggs collected almost 2 months ago. She even got to hold one in her palm. और क्या किया उस नौफिया ने? नौफिया ने जो है कुछ न्यूबॉर्न सी टर्टल्स थे जो 2 महीने पहले उन लोगों ने एग्स को लेकर आए थे, उसको देखा और उसमें से छोटे सी टर्टल्स निकल के आ गए थे और उसने एक सी टर्टल को अपने हाथ में भी लिया था। How were the baby turtle released into the sea? और बेबी टर्टल को सी में कैसे रिलीज किया गया? The hatchlings were taken in basket towards the sea. The volunteers formed a semicircle on the beach and put
241 hatchlings on the ground. At midnight, the newborns walked into the sea. Some of them were washed back to the shore. The volunteers directed them toward the sea, and soon all the baby turtles disappeared from sight. कैसे उन्होंने सी टर्टल्स को रिलीज किया? उसको उन्होंने बास्केट में लेकर गए, वहां पे एक सेमी सर्कल बनाया करके खड़े हो गए और 240 हैचलिंग्स जो था उसको, जिसमें से सी टर्टल्स निकले थे, उसको जमीन पे रखा और वो जो रात के समय वो जितने न्यूबॉर्न्स थे वो सारे सी में चले गए और कुछ जो थे शोर पे आए, वो लोग को भी वॉलंटियर्स ने डायरेक्ट किया सी में जाने के लिए और थोड़ी देर बाद सारे सी टर्टल्स डिसअपियर हो गए उनकी आंखों के सामने से। What are the dangers that olive ridley sea turtle face? Adult olive ridley turtles are killed for their skin or meat. They often get trapped in fishing nets and their flippers get cut off. Most of them are severely wounded and they drown. Turtle eggs and hatchlings are eaten by crabs, storks, snakes, birds, and are trampled on by people. Hatchlings instinctively walk to the sea, guided by the starlight reflected by the waves. But the street lights confuse them and they walk towards the shore. Their chances of survival on land are very slim. They have also become endangered because there are very few nesting sites remaining in the world for these turtles. उन लोगों को क्या क्या खतरा है, सी टर्टल्स को क्या क्या फेस किया करते हैं वो लोग? जो एडल्ट सी टर्टल्स होते हैं, लोग को लोग मारकर उसके स्किन और मीट के लिए उसको मारा जाता है और कुछ सब कभी कभी क्या होता है, उनके फ्लिपर्स जो है नेट्स में फंस जाते हैं और वो कट जाते हैं, जिसके कारण वो नीचे सी में डूब भी जाते हैं। उनके अंडों को क्रैब, डॉग, स्नैक्स, बर्ड्स और समटाइम्स लोगों की तरह पैर से कुचल भी दिया जाता है। कैसे होता है? ये जो हैचलिंग्स जो होता है ना, वो सी लाइट्स, स्टार लाइट्स जो होते हैं उसके रिफ्लेक्शन से वो शोर की तरफ आते हैं, पर ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको कंफ्यूज करता है, जिसके कारण वो शोर की तरफ आ जाते हैं और फिर उनका सर्वाइवल लैंड पे बहुत कम हो जाता है। ये क्या हो गया? अब इंडेंजर इसलिए भी हो गए क्योंकि उनकी नेस्टिंग साइट्स बहुत कम हो गए हैं वर्ल्ड में। हाउ डिड द ऑलिव रेडली सी टर्टल्स गेट देयर नेम? और उनका नाम कैसे पड़ा? Olive redleys are so called because of the color of their heart-shaped shell and H.N. Redley who discovered the species. किसने डिस्कवर किया था? H.N. Redley, उनके नाम से उसका नाम पड़ा। होप बच्चों आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग कर लिए होंगे। Do like and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.